4,50,000 रुपए की कमेटी हड़प करने की लालच में हुआ किसका कत्ल और फिर कत्ल को अगवा का रंग कैसे दिया गया। सीआईए पुलिस ने लाश कहां से और कितने रोज बाद बरामद करके मुल्जिमान पकड़े, जानिए इस वीडियो में। क्या नाम है आपका? अकबर। क्या हुआ था? सर तारक नाम का आदमी, उसने मेरे कमेटी पाई सी मेरे वाल तो उनकी कमेटी निकली तो फिर मैं तारक ਨੂੰ फ़ोन किया भी कित्थे हैगा। उन्हें कहा मैं मुल्तान हाँ। उन्हें कहा कमेटी लाइक नूं दे आ। मैं ठीक है। वो फिर वहीद ਨੂੰ फ़ोन किया गड्डी लैके आ, कार लैके आ। ये कार लैके आया, असीं 6:30 बजे पिंडों निकले हाँ तो रैवंड आए। रैवंड आन के फिर तारक ਨੂੰ फ़ोन किया, लाइक ਨੂੰ कहा भी बाहर आ जा, पैसे लैके आ गए ने। तारक ने लाइक ਨੂੰ फ़ोन किया भी पैसे लैके आ गए ने, अकबर होनी जाके बाहरों पैसे ले ला उन्होंने कोलों। असीं कार उहदे बूहे अगे जाके लाई है, दरवाज़ा खड़काया, लाइक बाहर आया तो कार की मगरली बारी खोली है तो लाइक ਨੂੰ पैसे विखाए ने। लाइक कार च बह गया आन के, वो पिस्टल फिर उनकी कन्न पट्टी ते रखिया सी ते कार भजा ली है। कार भजा के शहर चों बाहर लिजा के फिर तारक नाल गल कराई है भी तारक लाइक नाल गल कर ला, पैसे पूरे ने। तो कन्न पट्टी ते पिस्टल रखिया सी, लाइक ने कहा हाँ पैसे ना मैनू कमेटी के सारे दे दिते, 4.5 लाख रुपया पैसे पूरे ने। तारक ने कहा ठीक हो गया, ओके हो गया, तुसीं जाओ हुण। असीं फिर उन्होंने नहर ते लै जाने, नहर ते जाके उहदे सिर च फायर मारने, फायर मार दे नाल चुक के नहर सुੱਟ देने, नहर सुੱਟ के असीं अपने घर आ जाने। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? बस वो इसे करके भी पता ना लगेगा भी पैसे दे के गया चले ने। तारक 2-4 दिन बाद आवेगा, गल ठप्पी जाएगी भी लाइक किधर गया किधर नहीं गया, ये सोचा सी। ਤੇ ਤਾਰਿਕ ਔਰ ਲਾਈਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? तारक मेरे पिंड दा ते लाइक उनका दोस्त हैगा तारक दा, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ? खुरपा ਚੱਕ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਈਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ? हाँ जी। ਤੇ तारक ਉਹਦੀ ਰੈਸ਼ਨ ਕਸੂਰ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਦੀ, ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਖੁਰਪਾ ਚੱਕ। ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ? ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਹਕ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਲਾਈਕ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਰਕ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤਾਰਕ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਤਾਰਕ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਨੂੰ ਫੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਦਾ ਘਰ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ 10 ਤਰੀਕ ਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਕ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਲਾਈਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਅਕਬਰ ਕਮੇਟੀ ਲੈਣ ਆਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ। ਤਾਰਕ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਯਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 5,000 ਦਾ ਨਾਵਾਂ ਸੀ, 4 ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ ਤਾਰਕ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਈਕ ਕੋ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤਾਰਿਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਸੀ? 49 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 50 ਲੋਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਰਿਕ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਬਸ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਯਕਦਮ ਹੀ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਚਵਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਕੇ ਖੋਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਖੌਫ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਰ ਬੜਾ ਖੌਫ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕੀ ਖੌਫ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਇਹੋ ਹੀ ਖੌਫ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅੱਗੋਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਠੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਤਾਰਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। असला किधर से आया? गाड़ी किधर से आई? तेरे पास इतने पैसे थे? ਅਸਲਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ? ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਲ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸਲੇ ਦਾ? ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸਲੋਂ ਦਾ ਬੂ ਪਿਸਟਲ ਲੱਗਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿਸਟਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਪਿਸਟਲ ਸੀ।
ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਹੈ। वही गाड़ी किसकी थी? सर वो नया के वो साथ के गांव वाला आदमी है उसकी है, उसकी मैं रेंट पे चलाता हूँ। 500 रुपये वो मुझे देता है एक फेरे का, एक दिन का। तो गाड़ी किस तरह आती है? कोई पैसेंजर लेके जाते हो, सवारियां लेके जाते हो? हाँ, बारात के लिए जैसे कोई फंक्शन वगैरह होते हैं, बारात पे जाना हो तो मेरी बुक करवा लेते हैं कार वो। तो उस दिन क्या कह के लेके निकले थे गाड़ी? ये इसने मुझे बोला था हमने ना शादी पे जाना है, तो मैंने बोला ठीक है चले जाएंगे। मेरे मालिक को भी इसने ऐसे ही बोला कि शादी पे जाना है। तो जब ये मुझे मेरे साथ चला जाता है रेमंड में, रेमंड जाना, रेमंड जाके मुझे कहता है इस तरफ करो, इस तरफ करो, मैं उस तरफ करता हूँ। और आगे जाके मुझे कहता है हम आगे मैंने बोला मुझे क्या पता किधर जाना है, आप बताओ। उसने बोला आप गाड़ी मोड़ो। मैं गाड़ी बैक कर रहा हूँ, गाड़ी मैंने पीछे को आने के लिए रिटर्न किए तो इसने मुझे बोला, इसने तारक नाम के बंदे को कॉल किया। उसने बोला भाई मैं ना 2 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास, तो उसे बोलो पैसे ले ले आके, आदमी को बोलो पैसे ले ले आके। उसने पता नहीं कॉल की नहीं कि इसने ये ना फिर आगे बैठा था, ये फिर पीछे बैठ गया। तो मैंने उधर गाड़ी रोकी है सर, वो ना अंदर से एक बुज़ुर्ग आया तो इसने पीछे का दरवाज़ा खोला, ये पीछे बैठा हुआ था तो वो गाड़ी के पास है, इसने उससे पैसे दिखाए और वो गाड़ी में आन के बैठ गया। ये गाड़ी के पास है, इसने पैसे दिखाए, इसने बोला अंदर बैठ के गिन लो, कोई आता जाता होगा। वो अंदर बैठ के गिनने लग गया। जब इसने ना इसके पास फिर पिस्तौल था, इसने उसको पिस्तौल दिखाया और वो चुप करके बैठ के, इसने बोला बोलना नहीं वरना मैं आपको फायर मार दूंगा। वो नहीं बोला, वो चुप करके बैठ गया। इसने मुझे बोला गाड़ी भगाओ, मैंने गाड़ी भगा ली। 200-300 मीटर पहले गाँव के उधर जाके इसने मुझे बोला उतर के ना नीचे आओ गाड़ी से। मैं उतर के नीचे आओ, मुझे कहता ना इसको हमने फायर मारना है। मैंने बोला फायर क्यों मारना है इसको? इसने बोला तारक के पैसे हैं, मैं तारक को बोलूँगा मैं उसको दे के आ गया हूँ तो क्या पता चलेगा किधर। मैंने बोला नहीं फायर ना मारो। नहीं इसने बोला फायर मारना वरना हम पकड़े जाएंगे, ये बता देगा। जाके हमने उसको उठाया और मेरे पैसे भी वो छीन के ले गए। 2 लड़के नहर पे चले गए। नहर पे जाके इसने मुझे बोला रोको, मैंने गाड़ी रोकी, दोनों उतरे, इसने फायर मार दिया उसको। तो आपको नहीं पता था कि इसके पास है जब आप इसके साथ सफ़र पे जा रहे थे? जब रेमंड चले गए थे ना, रेमंड चले गए थे जब, उधर जाके इसने मुझे बताया इसको जब उठा के गाँव में लेके जाना, उधर मुझे पता लगा इसके पास पिस्टल। आपका इसके साथ कब से ताल्लुक़ है? ये साथ के गांव का ना, ये हमारे साथ के गांव का। तो हमारे दुकान भी नहीं है, परचून की कोई भी दुकान नहीं है हमारे गांव में। तो इनके गांव में दुकान है, इसकी परचून की दुकान भी है, तो सामान वगैरह आना जाना इसी इनके गांव का ही होता हमारा। तो पहले भी कभी इसके साथ मिलके किसी को लूटा है? नहीं सर, कोई बस पहली दफ़ा वो भी इसकी बातों में आ गया। उधर उसने कभी किसी को पहले इस तरह कत्ल किया हो या किसी को ज़ख्मी किया हो? नहीं। इज्जत के साथ अपना रोज़गार कमा रहे थे, अब आप यहाँ पर हथकड़ियाँ लगा कर खड़े हुए हो। जी सर, बहुत अच्छी थोड़ी खा रहे थे लेकिन शुक्र था अल्लाह का, अच्छी खा रहे थे, अपना काम थोड़ा सा करते थे। फारग टाइम में गाड़ी लेकर चला जाता था, 500 रुपया मुझे मालिक दे देता था। आपको भी तो लालच दिया होगा इसने? नहीं सर, कोई लालच नहीं दिया, पूछ लो सर। ये हमारे साथ मुल्ज़िमान मौजूद हैं। अब चलते हैं पुलिस के पास और उनसे जानते हैं कि कैसे पकड़े गए। हमारे साथ इस वक्त डीएसपी रईस अहमद खान मौजूद हैं। रईस साहब ये बताइएगा कि ये शहरी कौन है और इसका मुल्ज़िमान से क्या ताल्लुक़ था? तारक ने 2 कमेटियाँ डाली हुई थी। तारक एसटी रेलवे है, टिकट कलेक्टर, और वो लाहौर से ज़्यादातर बाहर रहता था। अक्सर औकात ये जो अकबर है, ये तारक का दोस्त लईक था। लईक अरसा 20 साल से ये भी इसका दोस्त था तारक का। तारक और अकबर अक्सर औकात इससे कमेटी लेके आता था लईक से। जब वो लाहौर से बाहर होता था तारक, तो वो ये कहता था कि जाके मेरे दोस्त लईक उससे जाके ले। इसका अकबर का प्लान बना, दो कमेटियाँ इकट्ठी हो गई थी 4.5 लाख की। 2 महीने से अकबर तारक को कमेटी दे नहीं रहा था। प्लानिंग के मुताबिक उसने उसको फ़ोन किया तारक को कि आप मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए हैं 4.5 लाख, मैं किसको दूँ? और उसने कहा मैं थोड़ी देर तक आपको बताता हूँ। उसने तारक लईक के साथ रब्ता किया तारक ने कि तुम घर हो? उसने कहा हाँ मैं घर हूँ। उसको कहा यार वो अकबर ने मुझे कहा कि पैसे इकट्ठे हो गए, आप मुझे मैं उसको कहता हूँ वो आपको दे जाए। वही बात हुई कि अकबर ने दोबारा उससे फ़ोन पे बात की। उसने कहा कि लईक घर है, आप कमेटी जो है ना वो उसको जाके दे। वो जब उसके घर के बाहर पहुंचता है अकबर की प्लानिंग थी, गाड़ी भी उन्होंने अरेंज की हुई थी, मोटरसाइकिल थी, बंदा एक जो वहीद उसका अमराई मुकदम था, वो गाड़ी थोड़ी सी दूर। जब उसको फ़ोन किया कि लईक बाहर आ रहा है, वो उसने सारी चीज़ें अपनी अंदर ही छोड़ी। बाहर पैसे लेने थे, वसूल करने थे, तो वो अंदर आ जाना था उसने। जब वो गेट के बाहर निकला तो उसका भाई देख रहा था जो मदई बना,
उसका भाई देख रहा था कि बाहर को बंदा आके खड़ा है अकबर, और उसने क्या किया कि गाड़ी में बिठा लिया, गाड़ी पीछे रिवर्स की और कहा कि जी ये पैसे 1.5 लाख रुपया या 90,000 रुपया पकड़ाया गिन लें। वो एक पाँव उसका बाहर था, एक पाँव उसका गाड़ी के अंदर था। उसने कहा कि वो ड्राइवर ने उसको कहा वहीद ने कि बाबा जी आप ऐसा करें, ये पाँव अंदर कर लें, कूलिंग जो है ना गाड़ी की वो बाहर जा रही है, तो आप अंदर बैठ के गिन लें। उसी वक्त उसने बाबा जी को कहा कि गन पॉइंट पे पिस्टल के साथ उसको कहा कि बोलना नहीं। वो उसने गाड़ी वहाँ से चला दी। राजा जंग नहर के पास जाके इन्होंने तारक को फ़ोन किया, अकबर ने दोबारा कि जी ये बाबा जी से पूछ लें कि पैसे हमने दे दिए। क्योंकि तारक से हमने तस्दीक की बाद में, तो तारक ने यही बात की कि जी बाबा जी ने कहा कि जी पैसे मैंने गिन लिए हैं, मैंने पूरे रिसीव कर लिए। उसी तरह गाड़ी से इन्होंने नीचे उतारा, उसको नीचे उतारने के बाद उसके सर पे फायर मारा और दोनों ने उठा के नहर के पास ही खड़े थे, दोनों ने उठा के नहर पे फेंक। वो उसने मदई ने बुलाया कि यार रात का मेरा भाई नहीं मिल रहा, तुम आए थे। उसने कहा जी मैं तो कमेटी दे के वापस चला गया। तो फिर उसके बाद अगले 22 का वकूआ है, 23 को फिर ये तस्दीक करते रहे, 24 को फिर पर्चा दर्ज हुआ। 24 के बाद इन्होंने जब पुलिस के पास पर्चा दर्ज हुआ, पुलिस ने सुना तो 365 पे उसको उन्होंने पकड़ लिया, बिठा लिया। अगवा का मुकदमा दर्ज किया, अगवा का मुकदमा उस वक्त, क्योंकि पता नहीं था किधर है, क्योंकि इन्होंने तो उसी वक्त जाके मार दिया ना। वो पुलिस इसको पकड़ लेती है, अकबर को बिठाती है पूछने के लिए। तो वो उसी अगले दिन एक दिन रखते हैं, तो अगले दिन इसका भाई जो है वो मुंशी है किसी वकील का, वो बैलफ डलवा देते हैं। वो गिरफ्तारी पड़ी होती है, वो अदालत में पेश करते हैं, 2 दिन का रिमांड लेते हैं। तो वो उधर वो कुछ नहीं बताता पुलिस को। वो फिर मदई हजरात डीजी साहब अपना इमरान कशरफ साहब के पास जाते हैं, तो उन्होंने तफ्तीश हमारे सीआईए के नाम मार की। उसी दौरान फिर हमने CDR निकलवाई उनकी, अकबर की, वो जेल में ही था। फिर देखा कि इसका किस किस के साथ लिंक है, वो उनको हमने इंटेरोगेट किया। फिर उसके बाद वहीद नाम का शख्स एक बंदा जो इसके साथ था, हाँ जी, वो सामने आया, तो फिर उसको गिरफ्तार किया। फिर उसके बाद उसको तलब करवाया, फिर उसको यकसूर किया सारे सबूतों के साथ। गाड़ी भी रिकवर कर ली, 3.5 लाख अप्रॉक्सीमेटली। बाकी वो कहता है मैंने खा लिए, मैंने उधर दे दिए, मैंने उधर। 3.5 लाख इन दोनों से हमने रिकवर कर लिए, गाड़ी भी रिकवर कर ली। फिर उसके बाद हमने जब डेड बॉडी हमने ढूंढी, जिस दिन हमें पहले 365 था, फिर 302 जुर्म अदाज किया। फिर हमने वहाँ से नहर से वो सारी अपना वो जो 1122 वाले डेड बॉडी ढूंढते रहे। 12 दिन के बाद डेड बॉडी मिल गई। 22 का वकूआ है, 2 तारीख को डेड बॉडी मिली। क्योंकि पानी जब कम हुआ है तो वो डेड बॉडी बाहर किनारे पे आई है। तो मुझे SHO साहब छांगा मांगा ने बताया कि जी डेड बॉडी मिली है। मैंने फिर मदइयों से रब्ता किया, मैंने उनको बताया कि आप उधर जाएं, आपकी डेड बॉडी मिली, आप देखें, शनाख्त करें। फिर उन्होंने अपनी डेड बॉडी शनाख्त की, फिर उसका जो प्रोसीजर था वो अडॉप्ट